इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एक शुरुआत है। आपकी आवाज़ हमें लोगों तक पहुँचाए और जो चीज़ आज तक हिंदुस्तान में नहीं सोची गई, ना की गई, उस चीज़ का आप आवाज़ बने, उस चीज़ को इतिहास के पन्नों में लिखने के लिए हमारा सहयोग करें। वर्ल्ड रेसलिंग भारत की तरफ से रणभूमि द क्लैश ऑफ बाहुबलीज का आयोजन होने जा रहा है। ये आयोजन राजधानी लखनऊ में किया जाएगा। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं WWP के चेयरमैन मार्क बियल। सर, वेलकम टू TV24। What is this? You are in Lucknow today. For what are you in Lucknow today? Well, we're very excited because, wrestling is big. And I've always said that we need to promote local superstars. India's got a population of 1.6 billion. There's no reason why India can't be the leader in the sport of professional wrestling. We're very excited. We've been into India for a couple of years now. But now in Lucknow, we have a group of people that have said we want to take the bull by the horns, and it's time to establish India as the front runner in the sport, in world wrestling. And we coming on board to assist. Together with our combined experience of over 48 years in the industry, we say because I absolutely love India. I've been here a couple of times, and South Africa and India have got a very good relationships. We're all part of the BRICS, after the BRICS nations. So it's a privilege for me to be able to come to India and to be able to take young people and to raise them up. But in this sport you need media. You need media to assist so that India can turn around and say we don't have to support some wrestlers all the time from other countries, but we can support our own people. And as I say, 1.6 billion people, there's no reason why India can't be the best. You have hosted many events like TNA, ECW, WCW. Now you are in Lucknow. How are you going to make this event a mega event or electrifying event? Okay, let me just help you right over here. Now, I've never hosted TNA events or WCW events. We've hosted WWP events together with wrestlers from TNA and WCW and all of that. So what we're doing is that we're saying to Lucknow, we're going to be bringing the world to Lucknow. We're going to be bringing humongous world wrestling superstars to fight against Indians. Together with the media machine, we want to make this a mega event. Together with television, together with all the print, with the electronic media, with the big names. Today we launched 8 very big names. We're going to be having at least 4 world title matches right here in Lucknow. In order for it to be a major success, media, you got to have buy-in from media. You got to have buy-in from the local population, which I really believe it's got. Today, this was a tremendous successful media launch today, and I know that it will be. And today, you can say if the media launch is as successful as what this is, then that stadium of 10,000 that can take 10,000 people might just be a little bit too small. How many international wrestling professionals are going to be the part of this mega event? Well, currently, we're looking at bringing in about 10 in total international wrestlers. But remember, like I had said to you, we also want to have locals. So we will be having about 8 locals, and we'll be bringing in about 10. We don't want to mention the other ones' names right now because we have a further press conference the first week of December. And then we will mention all of the rest. But today we mentioned quite a lot. We got Chris Masters, you got Carlito, you got the Great Alofa, you got Joey Legend. These are legends in the game of professional wrestling, you know what I mean? They're looking forward to it, and they're looking forward to come and say for the next 3 or 4 years to be able to say, let's create legends in India. Let's create local legends. If a local wrestler wants to be a part of your this mega event, how he's going to participate in this event? Okay. Now, it's like a rugby team and a soccer team. You've only got 11 players in a soccer team. You've only got 15 players. I am asking the selection process. How is going to be selected? Okay. So we will be, because we've been around India, we do know a lot of local wrestlers as well, you understand. So let me rather answer your questions by saying that yes, we're going to be opening up a developmental wrestling school where we will be taking people and starting to train them. Where they might not, those new ones might not be ready yet now to come on the 24th. But there are a couple of very well established wrestlers that we've already been in touch with that we will be taking in and we will be putting them on the show. Currently there's about 9 from India that will be on the show, and their names will be released the first week of December. Sir, my last question, how this event is going to enhance the relationship between India and South Africa? Yeah, I think I speak from a wrestling point of view, it's already huge. Whenever we have very big events, we bring in Tiger Raptor, we bring in Sangram Singh,
We always have Indian wrestlers there because South Africans love India. You understand that we respect India. We respect Prime Minister Modi. He's got a good political relationship with our country. For me to be able to come to India, it's not a difficult choice. You know, I've grown to love India. I've grown to love Indian people. So the relationship is already there. We're just saying we want to be part of the glue that even cements it even bigger. You know what I mean? And even more tighter. How this event is going to enhance the sports industry in India? Well, it's early days. You got to understand it. It's early days, but our vision is to create a weekly television show, maybe one, maybe two, to create mega big shows. So as this wheel starts turning, it will start affecting people that want to be involved in the industry in a very big way, because there will be an opportunity. Because it's easy to go, or not easy, but you can go and train. But if you don't have shows to show your talent on a big stage, you understand? And it's difficult for somebody from India to say, let me get to America, let me get to Australia, because it's difficult. So now we want to say, we bring in that mega stage here into India. And there's no reason why it can't be the mega stage of all world wrestling. 1.6 billion people. It's got to happen. You have prepared many professional wrestlers, and one of them is an Indian professional wrestler, Tiger Rapta. How was your experience preparing him for the event? Yeah. You know, I remember when the first day that I met Tiger Rapta, and if I look at the day where Tiger Rapta is now, it's been a gem. You know, in wrestling, I can work with anybody. It goes about you got to have a good attitude in life. If you've got a good attitude in life, you're going to go far, because you know your attitude determines your altitude. You understand? And when I looked at a chap like Tiger Rapta, it was just somebody that I could work with from day one. Unfortunately, you know, you don't meet somebody today and tomorrow they are a megastar. This thing takes years, and I'd like to believe Tiger Rapta is on his way. You know, he's definitely on that bicycle and he's busy driving. You know what I mean? In terms of getting to the finish line. You know, we excited about it. It's exciting. As a matter of fact, Tiger Rapta is not the only Indian chap around. You know what I mean? There's quite a few guys around that I've really taken to and that we're working with. And this model, and all we can say is watch the space. You know what I mean? Watch this thing go, and then just, you know, let me share with you just in closing quickly. In South Africa, we started a mega project like this. And then we said originally, we're going to use only 20% local South Africans and 80% we're going to bring in, because it's those international stars that make the superstars. But we said within 3 or 4 years, that percentage must be turned. So today, those shows have got 80% local and only bringing in 20%. Do you understand? So that must be the vision, but we got to understand it's a process of creating those superstars. You understand? And that's where we are. Today the process has just taken another few steps forward in creating those superstars. So one important question, is wrestling scripted or real? You know, And if it's not scripted, then can you please elaborate? no, look, wrestling's like the boy who cried wolf. You know, let me be really honest with you. I shared in the press conference many years ago. I was a wrestler for many years, and when I was in a tag match with my brother, and when he unfortunately passed away in a wrestling match. Do you understand? I wanted to say to him, "This is scripted. It's okay. You can open your eyes now." But he was gone. Wrestling is the boy who cried wolf. You know, you can get into certain countries, and certain countries it can be 100% scripted. In other countries, it cannot be scripted. It's very difficult, you understand. It depends on the business model that you want to choose. You know, from that point of view, we always prepare. In South Africa, we say the best man wins. You got to fight for honor. You understand? And it's about honor. In different countries, they might say, that works this way, it works that way. I'm not here to argue with anybody else. I'm here to say honor is a very important thing. You understand? There's no way that somebody is going to let Tiger Rapta come to to South Africa, and let Tiger Rapta all of a sudden go and beat the champion there for nothing. You know, if he beats the champion, he must know he's beaten the champion. You know, Tiger Rapta came now in April to South Africa for a very big show that we had there. He met his opponent the day before the time. You understand? And I thought, this is going to be... And Tiger Rapta was just unbelievable on the day. You know what I mean? He was really unbelievable. So it's about guts. You know, we got a saying that you got to have the guts to have the glory.
You know what I mean? So it depends where you are. So when we train you for the worst possible scenario. You understand? If you get into a point where you're going to come into a scripted fight, then that you can do that. But you get into a point where it's very, 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 very real. It would depend on the day and depend on the promoter and depend on the fights from that point of view. What message are you going to give through our news channel to all the Indians regarding the event? Well, I'm going to say that this is a wonderful opportunity for India to promote something local, to support something local. This is an event that is taking place now in Lucknow, the 24th of January. I want to say to Indian people, especially in the Lucknow area, to support it. Get behind it, because this is something exciting. This is something that can drive an economy. This is something that a job creation. This is somebody that can make dreams become a reality. You understand? That's what this whole venture is about. So Lucknow, get behind it. You know, you won't be sorry. हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मशहूर प्रोफेशनल रेसलर टाइगर राब्ता सर टीवी 24 नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजधानी लखनऊ में एक इलेक्ट्रीफाइंग इवेंट होने वाला है, क्या कुछ इवेंट होगा और क्या कुछ प्रारूप होगा? देखिए, इस शो में रणभूमि 1.0 द क्लैश ऑफ बाहुबली, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें एक इंडियन तड़का है। क्लैश ऑफ बाहुबली, नॉट मॉन्स्टर, नॉट लाइक जाइंट्स, इट्स बाहुबली। तो इस चीज़ से आपको ये पता लग जाएगा कि बाहुबली लाइक इंडियन रेसलर्स धूल चटाएंगे विदेशी रेसलर्स को। एंड इस शो में काफ़ी सारे इंडियन फेसेस ऐसे हैं जो अभी तक उनको एक पहचान नहीं मिल पाई है, जिनको अभी तक एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है। वो लोग, वो अपकमिंग जनरेशन, वो स्ट्रगलर और वो हीरे जो अभी कोयले के खान में छुपे हैं, उनको एक आगे बढ़ने का, इंटरनेशनल स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा। रेसलिंग की अगर सर हम बात करते हैं तो रेसलिंग भारत का एक सबसे बढ़िया एक अनोखा खेल हुआ करता था, लेकिन कहीं ना कहीं विदेशों में इसको ज़्यादा मान्यता रिकॉग्निशन मिला। ऐसा क्या कारण रहा कि इसको यहाँ इंडिया में रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया? देखिए, जैसे कि आपको पता है, महाभारत रामायण के टाइम से अगर आप देखते आएंगे तो पहले ये अलग अलग कुश्ती, गट्टा कुश्ती, अलग अलग नाम से कुश्तियाँ हुई करती थी। तो जो ये बाहर वेस्टर्न कंट्रीज है, इन्होंने इसी चीज़ को तोड़ के मरोड़ के अपना रूप दे के एक प्रोफेशनल कुश्ती या कुछ और नाम रख के इसको दे दिया। देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन, दे आर रनिंग द रेसलिंग कंपनीज एंड ऑल। तो वही चीज़ अगर हम इंडिया की जो चीज़ है, अगर हम इंडिया में इसको वापस लेके आए, इसको एक नए तरीके से, नए रूप से इसको थोड़ा मोल्ड करके आगे लेके जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी हम, इंडिया की आबादी कितनी है, कितने सारे इंडियन स्टार है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते, बाकी चीज़ें जीती है, बट ज़्यादा फैन फॉलोइंग आप देखेंगे ये जो इतने रेसलर्स यहाँ पे, इनको यहाँ पे लेके आने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम खुद अपने लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। चैनल मीडिया पे हम जब भी देखते हैं ज़्यादा फॉरेनर रेसलर्स को देखते हैं। तो अगर वही इंडिया के लड़के इन लोगों को हरा के आगे बढ़ते तो आई थिंक आने वाली जनरेशन जो हमारी यूथ है, हमारे जो युवा है, बाकी जो लोग हैं, तो इस फील्ड की ओर आगे बढ़ेंगे जब उनको खुद चांस मिलेगा। क्योंकि एक आदमी का सपना होता है, वो इवन व्हेन आई वाज किड दैट टाइम सपना था कि नहीं यार रेसलिंग करें, देखें। जब इन लोगों से सामने मिले, देखा इनको, फिर लगा यार हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो वही चीज़ यहाँ के युवा भी कर सकते हैं, यहाँ के जो यंगस्टर है वो भी कर सकते हैं। ज़रूरत है उनको प्लेटफॉर्म देने की, जो हम दे रहे हैं। तो इस शो में आई थिंक काफ़ी सारे ऐसे यंगस्टर्स रहेंगे जिनको इस शो के थ्रू चांस मिलेगा। अभी तक के अगर आपके प्रोफेशनल करियर की अगर हम बात करते हैं तो अब तक का प्रोफेशनल करियर कैसा रहा और कौन कौन सी बड़ी फाइट्स आपने लड़ी अब तक? देखिए, आई स्टार्टेड लॉन्ग टाइम बैक, 2009 में शुरू किया था मैंने। जो पहला शो किया था अपना कलर चैनल के लिए 2009 में, दैट शो नेम वाज दे दनादन, 100% दे दनादन हमने एक शो किया था। उसके बाद एक रिंग का किंग शो किया था, वो शो हमने सोनी के लिए किया था। फिर उसके बाद काफ़ी सारे टैग टीम चैम्पियन के मैंने टाइटल जीते, वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन का टाइटल जीता, कॉमनवेल्थ का टाइटल जीता। तो अभी रिसेंटली जो ये टाइटल जीता है बॉबी लैशले से, मैंने बॉबी लैशले और काफ़ी सारे लोग थे बाहर से आए थे, लोग एंड ऑल, जो जिनके साथ फाइट हुआ था जब भी मैंने ये टाइटल जीता था। तो अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका में भी हमारा पोर्ट एलिजाबेथ में कंपटीशन था, तो वहाँ भी ये टाइटल मैंने फिर से डिफेंड किया अपना। तो अभी आने वाले शो में भी काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना, भी बहुत जल्दी 1-2 महीने में नेक्स्ट मंथ चीज़ें रिवील हो जाएगी, कौन कौन आने वाले हैं, क्या कौन से टाइटल्स यहाँ पे दाव पे लगने वाले हैं। जी, कितने इंटरनेशनल रेसलर्स, प्रोफेशनल रेसलर्स सहभागिता करने वाले हैं? मेरे ख्याल से 10 से 15 लोगों के बीच में आएंगे। 10 से 15 लोगों के बीच में विदेशी रेसलर रहेंगे और
इतने ही लगभग इंडियन रेसलर्स भी रहेंगे। अच्छा, इसके पीछे का आइडिया क्या था कि लखनऊ में ही इस पूरे मेगा इवेंट को कराना है? देखिए, लखनऊ आई थिंक इट्स सिटी विद एनर्जी, विद पावर, और मुझको एक ये हॉबी है कि यहाँ की गवर्नमेंट शायद इस चीज़ को काफ़ी सपोर्ट करे, इस चीज़ को आगे लेके जाए, और यहाँ के यंगस्टर्स को, आने वाली जनरेशन को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इट्स अ बॉडी गेम। बॉडी गेम को अगर आप प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपके बच्चे नशे से, बुरी आदतों से दूर जाएंगे। क्योंकि अगर सपोज अगर आपके बच्चे ने या आपके भाई ने, किसी फैमिली रिलेटिव ने रेसलर बनना है, तो उसको सबसे पहले क्या, नशे से दूर जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज शुरू करनी पड़ेगी, है ना, फिटनेस फ्रीक बनना पड़ेगा उसको। तो इट्स अ गुड थिंग। हर फील्ड में अगर हम देखेंगे तो इस फील्ड की ओर किसी ने आना है, या इसका कोई फ़ैन है, फ़ैन भी वही होगा जो खुद करना चाहता है। जो नशों में जुड़ा है, बाकी चीज़ों में जुड़ा, वो इन चीज़ों की ओर नहीं आएगा। तो अगर इन चीज़ों की ओर लोग जुड़ते हैं तो डेफिनेटली नशे से दूर जाएंगे, और फिटनेस की ओर अग्रसर होंगे, और अपना करियर भी बना सकते हैं। जी, बचपन मैंने देखा था, खली जाते हैं रिंग में, अंडरटेकर को एक हाथ मारते हैं, एक चॉप मारते हैं और अंडरटेकर धराशायी हो जाते हैं। सवाल मेरा ये है कि क्या ये रेसलिंग स्क्रिप्टेड है कि रियल है? अगर नहीं है ऐसा तो इलेबोरेट आप करिए सर। देखिए, खली, मिस्टर खली, द ग्रेट खली, ही इज़ वेरी पावरफुल मैन। अगर आपको लग रहा है कि ये स्क्रिप्टेड है, एक थप्पड़ मार के वो गिर रहे हैं, उनके हाथ में इतनी ताकत है कि उन्होंने, मतलब वो एक, वही मैं बोल रहा हूँ कि इंडियन लोग, दे आर वेरी पावरफुल, एज यू सेइंग दैट मिस्टर खली हिट इट ऑन हिज हेड, वो एक थप्पड़ में गिर गए। तो खली के अंदर इतनी जान है कि वो एक थप्पड़ से विदेशी रेसलर को गिरा सकता है। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ही इज़ वेरी पावरफुल, द ग्रेट खली हमारे बड़े भाई हैं, ही इज़ वेरी पावरफुल। हमारे चैनल के माध्यम से राजधानी वासियों और प्रदेश वासियों को क्या कुछ संदेश देंगे इस पूरे मेगा इवेंट को लेकर? यही बोलना चाहूँगा, आपके शहर में अगर ये पूरे इंडिया में से पूरी इतनी सारी स्टेट्स है, यूपी में हो रहा है और यूपी को छोड़ के लखनऊ में हो रहा है, तो यू गाइज प्लीज़, ऑल ऑफ यू, पूरे लोग, सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइए, लाइव शो देखिए, इस शो को आगे बढ़ाइए और इन्जॉय कीजिए इस शो का। और ये देखिए, जैसा आपका क्वेश्चन है कि रियल होता है, सेम क्वेश्चन यू आस्क मी, तो लाइव आके देखिए कि रियल होता है या फेक होता है। आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मैदान में, स्टेडियम में दिख जाएगी। राज सिंह सर, टीवी 24 नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रणभूमि 1.0 का आगाज़ होने वाला है, द क्लैश ऑफ बाहुबलीज, क्या कुछ प्रारूप रहने वाला है और किस तरीके से इस पूरे मेगा इवेंट का आयोजन किया जाए? सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रेस की, जिन्होंने हमारा आवाज़ बनने में हमारा सहयोग दिया। अकेला मैं चिल्लाता रहूँ, कोई सुनने वाला नहीं है, बट येस, कभी कभी क्या होता है, जब आवाज़ लोगों तक पहुँचती है तो एक क्रांति लाती है। यही क्रांति के माध्यम से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि लगभग 3 साल की मेहनत, और 1998 से मैं इस इवेंट्स को जानता हूँ, जिसको हम लोग रेसलिंग, फ्री स्टाइल रेसलिंग के नाम से जानते हैं। बहुत सारे ऐसे रेसलर्स मैंने दुनिया के अलग अलग जगह पे साथ में हमने काम किया है, मैंने देखा है कि उनकी क्या लाइफस्टाइल होती है। बट वही मैं जब कंपेयर करता हूँ हमारे हिंदुस्तान के रेसलर्स को, मैं तो हमेशा उनको टूटते हुए देखता हूँ। आज जैसे एक डॉक्टर कहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर कहता है मेरा बेटा इंजीनियर बने, बट एक रेसलर कभी नहीं चाहता उसका बेटा रेसलर बने, क्योंकि उसके पास ना प्लेटफॉर्म है, ना जीविका है। वो किसी बाउंसर की नौकरी करता है, तो किसी क्लब में बाउंसर बनता है, या फिर ट्रैक्टर रिपेयर करता है। तो वैसे ही एक मुहिम थी जो पिछले 3 साल पहले हमने शुरुआत करी थी। अलग अलग प्रांत को हमने सोचा कि वहाँ इसे लॉन्च करेंगे, बट लकीली ये सारी चीज़ें, ये दास्तान लखनऊ में लिखी जानी थी, तो इसीलिए हमने लखनऊ को इसलिए चुना क्योंकि 2 सॉलिड रीज़न से लखनऊ का। पहला, मैं भी यूपी का ही एक बच्चा हूँ, एंड दूसरे, लखनऊ मेरी ससुराल है। सो दीज 2 इम्पॉर्टेंट रीजन्स मेड मी कम बैक टू लखनऊ, और मुझे लगा इससे अच्छा कोई शहर हो नहीं सकता। वही मेरा सर सवाल था कि रेसलिंग भारत का सबसे हार्डकोर गेम रहा है, भारत को इसमें अग्रणी होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम भटक गए, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उसमें इसका एक इलेक्ट्रीफाइंग इवेंट और तमाम चीज़ें, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इसे टेक ओवर कर लिया। हम लोग कहाँ फेल हुए? द गेम कम्स ऑफ आइडियोलॉजी। हम सोचते क्या हैं, सबसे बड़ी बात यह है, जैसे हमने कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनको बिल्कुल सीरियसली अपने दिल से ले लिया, और शायद आज वो स्पोर्ट्स दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा सबसे ऊपर लहराते हैं। बट कुछ स्पोर्ट्स ऐसे थे जिन पे लोगों को लगा कि इसमें ना पैसा है, ना ब्रांडिंग है, ना कोई इमेज रिप्रेजेंटेशन है। लोगों ने इसी चीज़ के चलते इस चीज़ को हटा के रख दिया। बट मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये कलयुग है माय डियर फ्रेंड्स। कलयुग से पहले भी कई और युग है जहाँ रणभूमि में महाबली एक दूसरे के साथ टकराते हुए नजर आए। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस पूरे पोजीशन को एक अलग तरीके से, एक अलग ट्विस्ट एंड कर्ल के साथ प्रमोट किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट आज वो दुनिया में नंबर 1 हो चुके हैं।
तो हमने भी कोशिश करी कि कभी कभार क्या होता है, किसी स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए जो मार्केट के ट्विस्ट एंड कर्ल्स हैं उनका सहयोग लिया जाए। तो हमने सोचा क्यों ना फ्री स्टाइल रेसलिंग को एक नए सिरे से, एक नए तरीके से एक आवाम तक पहुंचाई जाए, जिसमें इन रेसलर्स को उनका मंच मिले, पूर्वजों को उनकी संतान वापस मिले, इस स्पोर्ट्स को उसका अपना खुद का सम्मान वापस मिले। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से इस स्पोर्ट्स को, इस इंडस्ट्री को हमने आगे प्रमोट करने की कोशिश करी है। लोकल प्रोफेशनल्स जो रेसलिंग प्रोफेशनल्स हैं, तो उनका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा? मान लीजिए वो आपसे जुड़ना चाहता है, वो रेसलिंग करना चाहता है, तो वो उनके सिलेक्शन का क्या कुछ प्रोसीजर है? किस तरीके से वो आपके साथ जुड़ सकता है और सेलेक्ट होकर एक अच्छा काम, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है? इसके लिए हमने क्या प्लान किया है, हमने प्लान किया है कि एक रेसलिंग एकेडमी का, तो रिंग हम खुद अपना बनाने वाले हैं। जब रिंग हमारा खुद का होगा तो ट्रेनिंग्स भी हमारे ही बंदे देंगे, जिसमें हमारे पास इंडिया से कुछ हैवीवेट प्रोफेशनल्स हैं जैसे टाइगर आपता जी हैं, उनका कंसिडरेशन रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्क जी के अनुयायी कुछ उनके भी स्टूडेंट्स हैं जो साउथ अफ्रीका, लंदन, अमेरिका में परफॉर्म करते हैं, वो भी हमारे यहाँ पे विजिटिंग फैकल्टीज़ होंगे जो चीज़ों को यहाँ ट्रेन करने में सहयोग करेंगे। ये बंदे हमारे इंस्टीट्यूशन में आ सकते हैं, ट्रेंड हो सकते हैं। जो अच्छे बंदे होंगे वो आगामी सीरीज़ में हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, इस मंच का प्रतिनिधित्व करेंगे, और उनमें जो बंदे आगे और ग्लैमरस होते चले जाएंगे, हम उनको फिर अपने इंटरनेशनल लीग में हिस्सा देंगे। भारत सरकार और प्रदेश सरकार का कितना सहयोग मिल रहा है? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि शायद अभी तक हमने सहयोग की बात करी नहीं, हमारी आवाज़ उन तक पहुँची नहीं, बट इस प्रेस रिलीज़ के माध्यम से मैं बस हमारी इस आवाज़ को, इस आइडियोलॉजी को, इस मानसिकता को उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि वी नीड अटेंशन ऑफ यूपी सरकार, क्योंकि जब यूपी ने कुछ किया है तो अव्वल किया है, और जब कहानी हमारे उत्तर प्रदेश से शुरू होगी तो डेफिनेटली ये एक इंटरनेशनल मोमेंट बनने वाला है, और उसके बाद फिर हमारे जो सेंट्रल है वो भी हमारे बारे में सुनेंगे, और जिस दिन वो सुनेंगे एक सोच ज़रूर लगाएंगे कि अगर कोई अमेरिकन, कोई अफ्रीकन, कोई इंग्लैंड का बंदा हमारे रेसलर्स के बारे में सोच रहा है तो क्यों ना भारत के इस बच्चे को सहयोग दिया जाए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। मेरा सवाल एक ये है कि ये जो इवेंट होने वाला है, कितने इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें सहभागिता कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, इसे इवेंट का नाम मत दीजिए। इवेंट एक दिन के लिए होता है और लोग उसे भूल जाते हैं। मैं इसे एक त्यौहार के रूप में मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं हूँ, हमारे जो लोग हैं। एक त्यौहार जो होता है वो हर साल आता है, और जब हर साल आता है तो एक माहौल बनाता है। तो हम इस त्यौहार के माध्यम से बस इतना ही वर्कआउट कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हम साउथ अफ्रीका के कुछ सुपरस्टार्स को लेके आने वाले हैं। हम डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो से जुबेरी को लाने वाले हैं, जो एक ट्राइब है, उसका राजा है, उनका पैशन, उनका धर्म ही रेसलिंग है। सो जुबेरी इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। देन फ्रॉम पोर्ट एलिजाबेथ टीजे ट्रेमर हमारे बीच में होंगे, जो ऑलरेडी हैवीवेट चैंपियनशिप संभाल रहे हैं। 17 कंट्रीज़ में उन्होंने खुद को डिफेंड किया है, अब हिंदुस्तान में डिफेंड करेंगे अपने टाइटल को। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास कनाडा से जो लेजेंड है, अमेरिका से क्रिस मास्टर्स द मास्टर लॉक है, अमेरिका से ही हमारे पास काउबॉय जेम्स हैं, वैसे ही हमारे पास अमेरिका समोन रेसलर जिसको हम लोग द रॉक के नाम से जानते हैं, उनका कज़न हमारे बीच में होगा, द ग्रेट ओलोफा। इसी तरीके से हिंदुस्तान के रेसलर्स वन बाय वन इनके साथ लड़ेंगे और अपना सम्मान, अपना गौरव वापस स्थापित करेंगे। क्या सर, जो इस तरीके के रेसलिंग के जो रेसलिंग होती है, क्या स्क्रिप्टेड होती है कि रियल होती है? ये थोड़ा कन्फ्यूजन आम जनमानस में है, इसको दूर करें, और खासकर यूथ में। मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम कभी किसी बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करते हैं तो उसके लिए बहुत समय पढ़ना पड़ता है। जब पढ़ते हैं तो एक एग्ज़ाम लिखते हैं, और उस एग्ज़ाम में फिर डिक्लेरेशन आती है कि हम पास हो गए या फेल। उसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दिस इंडस्ट्री, दिस प्रोफेशनल हैवीवेट चैम्पियनशिप जो है, इसमें जो बंदे ट्रेंड होते हैं ना, उनको सालों की मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे ऐसे रेसलर्स हैं जिनको 10-10, 12-12 साल ट्रेनिंग लेनी पड़ी, तब जाके वो एक मंच पे जाके स्थापित कर पाए अपने आप को। यहाँ चोटें भी रियल होती हैं, यहाँ खेल भी रियल होता है, यहाँ दावपेच रियल होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ कंट्रीज़ को डोमिनेट करती हैं, इसीलिए वो उसके रिजल्ट को मैनिपुलेट कर लेती हैं। वो नहीं चाहते कि कहीं और का बंदा इस टाइटल को जीत जाए। बिकॉज ऑफ दैट मैनिपुलेशन इज़ ऑलवेज देयर इन द रिजल्ट। बट मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, यहाँ चोटें भी रियल होती हैं, यहाँ बचाव भी रियल होता है, यहाँ खेल भी रियल होता है। बस कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज़ खुद को डिफेंड करने के लिए रिजल्ट्स मैनिपुलेट करती हैं। हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जो
देशवासी हैं, प्रदेशवासी हैं और लखनऊ वासी हैं, क्या कुछ संदेश देंगे इस पूरे मेगा इवेंट जो होने वाला है इसको लेकर? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एक शुरुआत है, आपकी आवाज़ हमें लोगों तक पहुँचाए और जो चीज़ आज तक हिंदुस्तान में नहीं सोची गई ना की गई, उस चीज़ का आप आवाज़ बने, उस चीज़ को इतिहास के पन्नों में लिखने के लिए हमारा सहयोग करें। लेट्स कम टुगेदर, वी आर गोइंग टू राइट अ हिस्ट्री। और आगे भी भविष्य में फ्री स्टाइल रेसलिंग की बात जब करी जाएगी तो सबसे पहले लोग हमें, हमारे बारे में, हमारी आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करते हुए हमें कॉल करें। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। I think it's a best initiative in terms of energizing youth in India. From the childhood, बचपने से हम लोग ने देखा है कि WWF हम लोग शाम को रोज़ देखते थे and we have been a fan of so many wrestling superstars. Now WWF के ही तर्ज पे यहाँ पे WWB स्टार्ट हो रहा है, which is Wrestling World of Bharat. We are here today to promote it because I am the co-chairman for ASSOCHAM and our objective and goal to promote industry. बिकॉज ये एक रेवेन्यू भी लाएगा उत्तर प्रदेश के लिए, जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, उसको जो है एक पुश करेगा। हमारी यूथ को एक नया जो है एनर्जाइज करने का जो है एक मुकाम है देगा। और साथ साथ जो वर्चुअल वर्ल्ड में हमारे बच्चे आजकल जो है इन्वॉल्व हैं, उनको ये भी प्रेरित करेगा कि चलो ठीक है, लेट्स डू रेसलिंग। बिकॉज जिम लवर्स हैं यहाँ पे, लेकिन जिम्स में फुटफॉल कम हो रहा है, तो इट विल ऑल्सो गिव अ बिजनेस टू जिम ओनर्स। एंड ऑल्सो द लास्ट थिंग कि हम लोग ने कोशिश कर रहे हैं कि वेलनेस और हेल्थ से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं वो भी इस इवेंट और इस लीग में पार्टिसिपेट करें, सो दैट दे कैन कम टू यूपी टू इन्वेस्ट देयर इंटायर बिजनेस अरीना हेयर। एंड माई विश इज़ टू मेक यूपी एज अ ODOW, टू मेक वन डिस्ट्रिक्ट वन रेसलिंग, सो दैट हर एक ज़िले से एक ऐसा रेसलर हो जो इंटरनेशनली परफॉर्म करके नाम रोशन करे।